Hello, students. Very good morning to all of you. Myself, Devesh Singh from LPM Public School, Gola Bazaar. Dear students, once again we are going to proceed this chapter. Today we have to read Making of the Indian Constitution. On the last day, we have read about the constitutions of South Africa, how the South African leaders, the South African peoples got a very strong constitution for the people of South Africa, and now here the term is for India. Like South African constitution, India also is struggling with very difficult circumstances. And at that time, the constitution, making constitution was a very difficult and huge matter for the peoples of India, for the rulers of India. It was a very big challenge for them. At that time, the people of India were emerging from the status of the subject to the citizen. Here it is also said that this was the time of before 1947, when Indian people were suffering due to effect of subject, due to effect of inequality, and just after it, there was a great partition between India and Pakistan. It was also a very traumatic experience for the people of India and Pakistan. Many people have died in the struggle. Many people have left their houses. And at that time, the poverty in India and Pakistan, because it was the partition time, was on the high scale. People were on the edge of starvation. It is a calculated number that about 10 lakh people were killed on the both side of the border in the partition, because there was a great violence happen among the people, and due to some another problem like that, the British also make us disturbed in a different, in a various matter. They left to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. उन ब्रिटिश शासनकाल ने सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए क्रिएट कर दिया कि जितने भी उस समय के राजसी स्टेट थे, उन सारे राजसी स्टेट को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि चाहो तो इंडिया के साथ जा सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो। और एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गया पार्टीशन के बाद भारत के लिए। और उस समय जो कंडीशन बना, उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। क्योंकि कंट्री का, अपनी इंडिया का कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रहा था, कोई भी मैटर सिक्योर नहीं दिख रहा था, और सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के, देश का प्रेजेंट क्या होगा, देश का फ्यूचर क्या होगा, इसको लेकर के उस समय के जो हमारे अग्रणी लीडर थे वो काफ़ी अधिक सफ़र कर रहे थे। Here you can say the great person Vallabhbhai Patel, Abul Kalam Azad, and T.T. Krishnamachari. All the credit especially goes to Sardar Vallabhbhai Patel to maintain the princely state, to agree them to join India, to make agree them to merge with India. All credit goes to Sardar Vallabhbhai Patel. The path to constitution. Despite all these difficulties, the makers of the Indian constitutions united. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of the consensus had evolved during the freedom struggle.
स्टूडेंट्स, उस समय इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे वो साउथ अफ्रीका की तरह नहीं थे जिन्होंने सहमति बना करके और एक डेमोक्रेटिक अपनी कंट्री को स्टैंड कर लिया। भारत के भी जो हमारे मेकर्स थे उनके अंदर यही था कि इंडिया को भी जो है साउथ अफ्रीका की तरह ही एक साउथ कॉन्सेंसस लाना चाहिए, एक सहमति लाना चाहिए। उस सहमति के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन बने, जिस सहमति में लोगों की फ्रीडम को जो है फ्रीडम को ओपन रखा जाए और हमारा जो नेशनल मूवमेंट हो वो बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसी स्ट्रगल ना हो जिसके नाते फिर से हम उस गुलामी की बंदिशों में कायम हो पाएँ। और जो हमारी कंडीशन थी उस समय की, उस कंडीशन को सोशल और पॉलिटिकल रूप से ट्रांसफॉर्म करना था कि वर्ल्ड लेवल पर एक इसका अमिट छाप बनाया जा सके। तो ये सारे चैलेंजेस को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक बहुत बड़ी उस समय चैलेंज था। दूसरी चीज़ कि जो डिफरेंसेस थे उस डिफरेंसेस में इंडिया के लोगों की आज़ादी के लिए लोगों के ओपन इक्वलिटी के लिए, ओपन फ्रीडम के लिए, लोगों के बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, ये सारी चैलेंजेस थी और इन सारे चैलेंजेस को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे हमारे लीडर्स को बनाना था। 1928 की बात है जब मोतीलाल नेहरू और 8 अदर्स कांग्रेस जो लीडर थे इन लोगों ने मिल करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। You have to remember this time. It was 1928 when Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted Indian Constitution. And in 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. और ये 1931 का समय है जब कराची सेशन में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रूपरेखा को, स्वतंत्र रूपरेखा को दिखाया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स को कमेटी के सामने लाया गया जिसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी को और राइट्स फॉर माइनॉरिटी को ये सबसे मुख्य धारा से जोड़ा गया। कुछ और जो बेसिक वैल्यू लीडर्स के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन सारी चीज़ों को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब जो था सिर्फ फैमिलियरली और पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशन जो थी, अब कॉलोनियल रूल के ऊपर भी एक एग्रीमेंट बनना था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हो वो हमारे एग्रीमेंट को डेवलप करे, जिसमें जो भी कॉलोनियल रूल्स हों उन कॉलोनियल रूल्स को भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मिल सके। ब्रिटिश रूल जो था उसने हमें वोटिंग राइट्स दिया था, लेकिन वोटिंग राइट्स सबके लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उस ब्रिटिश रूल्स को दरकिनार करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि उसमें हमारा जो लेजिस्लेचर बहुत ही वीक था और जो इलेक्शंस था वो 1937 में बड़ा इलेक्शन, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, और एट दैट टाइम दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और उस इलेक्शन में 1937 की जो इलेक्शन हुआ उसमें पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। बट आवर इंडियन लीडर इंट्रोड्यूस्ड themselves, they got ideas कि डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे देश के लिए काफ़ी वेलफेयर के लिए बेहतर हो सकता है, इसलिए डेमोक्रेटिक रूल्स को ही लाने पर उन लोगों ने सहमति जताना शुरू किया। Now, that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. Years of thinking and deliberation on the firm framework of Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other country, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the will of rights in the US. स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश से ली हुई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मुख्य रूप से इसमें हम साउथ अफ्रीका के रोल को लिया गया, उसके बाद से
हमारे जो लीडर्स थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू हैव रेड इन इंडियन हिस्ट्री, रेड इन हिस्ट्री बुक में जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत अधिक चीज़ों को मिला भारतीय अग्रणी नेताओं को, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में किन चीज़ों के लिए लड़ाई हुआ था जी आप पढ़ सके थे। इक्वालिटी के लिए लड़ाई हुआ था, वहाँ पे फ्रीडम के लिए लड़ाई हुआ था, वहाँ पे लोगों के रिक्वायरमेंट्स के लिए लड़ाई हुई थी। तो फ्रेटर्निटी इक्वालिटी की लड़ाई वहाँ हुई थी, इसलिए उस लड़ाई को माध्यम को आगे न हो पाए इसे मेंटेन करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का साथ लिया गया, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया गया। ब्रिटेन से डेमोक्रेसी का ब्रिटेन की डेमोक्रेसी का रूल लिया गया, और जो बिल्स ऑफ राइट है यूएस से लिया गया। इस तरह से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी लीडर्स टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और जो रशिया की जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी, उस सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से बहुत सारे इंस्पिरेशन को ली गई कि हमारे यहाँ की जो सोशल और इकोनॉमिक क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए कि हमारे यहाँ इक्वालिटी का माहौल बन सके, हमारे लोगों का जो एक प्रेम की भावना है वो हमेशा मेंटेन रह सके। But they were not simply imitating what others had done at each step, they were questioning whether these things stayed our country. All these factors contributed to the making of our constitution. And you can say students here that a lot of steps were taken by our government. There were many questions put by the peoples and other opposition persons that they are doing in the welfare of our country or not. All these things happened at that time, but finally the factors contributed, and our constitution's path was clear at that time. The Constituent Assembly. The Constituent Assembly, who then were the makers of the Indian Constitution, you will find have very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में जो बहुत से लीडर्स का उनका काफ़ी अहम रोल रहा, उन लोगों ने उस पर अपना काफ़ी एक ब्रीफ स्केच उस पर अपना मेंटेन किया, कैसे कैलकुलेशन को, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ पर काफ़ी अच्छी एक डीप बातचीत हुई। The drafting of the documents called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. और इलेक्शन से Constituent Assembly जो था वो 1946 में हेल्ड किया गया, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 1946 दिसंबर में रखी गई, और उसके जस्ट बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर बंटवारा हो गया। और जैसे बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, फिर जो है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2229 मेंबर्स उस समय हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुए। और फिर फाइनली असेंबली जो हमारी थी उसने 26 नवंबर 1949 को हमारी असेंबली इमर्ज हुई, एक प्रभाव में आई, और फाइनली एक साल और बीता और 26 जनवरी 1950 को ही हमारी जो असेंबली थी वो पूर्ण रूप से रिपब्लिक डे बन गई, पूर्ण रूप से हमारे देश के संविधान में शामिल हो गई। इस तरह से एक रिपब्लिक डे, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ 26 January. Why should we accept the constitution made by the assembly more than 6 decades ago? We have the already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of its member alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution fresh because the basic rules were not acceptable to all major and social groups or political parties. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीन फिगर को, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एस.सी. मुखर्जी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद की पहले लाइफ लाइन जो 1884 में बर्न किए थे 1963 में,
उनकी डेथ हो गई थी। बिहार के रहने वाले थे। और इंडियंस फर्स्ट प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लायर नोन फॉर हिज रोल इन द चेयर or the role of Champaran Satyagraha, 3 times the President of Congress, later the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. He is the very, very great person in the history of India, who also gave a lot of things, sacrificed his all desires, all his powers, all his moral values to Indian constitution to make it superior in the world's constitution. No one actually follows it, the experience of our constitution. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अनयूजुअल अचीवमेंट था, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सोशल ग्रुप थी वो कोई बड़ी उस समय सोशल ग्रुप नहीं थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे समय उस समय वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी जो कि हमारे यहाँ की बड़ी लेजिटिमेसी को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह के हमारे यहाँ की सिस्टम स्टूडेंट्स उस समय नहीं था जो हमारी सिस्टम को एक अच्छे रूल में लेके जा सके। और सेकेंड रीज़न जो था फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो दूसरी रीज़न थी हमारे यहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन की कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे रिप्रेजेंट करते। और नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, हमारे पास कोई भी उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। और इसीलिए हमारे यहाँ डायरेक्ट लोगों के द्वारा हम असेंबली को चुन नहीं सकते थे, इलेक्टोरल पावर के माध्यम से हम नहीं चुन सकते थे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव का जो है रोल को लाया गया। बिना रिप्रेजेंटेटिव के रोल के एक साथ हमारे देश के उतने करोड़ों लोगों को बैठा करके किसी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना एक छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। सो टू मेंटेन ऑल दिस थिंग फाइनली देयर वर इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव। हर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव एरिया से हमने एक मेंबर को, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का डिसीजन लिया। This ensures a fair geographical shares of members from all the region of the country. The assembly was dominated by the Indian People Congress, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinion. और उस समय इस रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से असेंबली जो थी उस असेंबली को डोमिनेटेड किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और जो पार्टी थी वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाई। कांग्रेस जो थी उस समय खुद पॉलिटिकल और ग्रुप्स और ओपिनियन को खुद वो अपने आप में एक पॉलिटिकल ग्रुप भी थी और उसकी अपने आप में एक पॉलिटिकल ओपिनियन भी थे। जो असेंबली थी हमारी, असेंबली के पास बहुत से ऐसे मेंबर थे जो मेंबर कांग्रेस के उस समय के कॉन्सेंसस से एग्री नहीं थे, सोशल टर्म्स से एग्री नहीं थे। असेंबली एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन देना चाहती थी जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशन सब कुछ शामिल हो, सबको समानता का अधिकार हो। और इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. Finally, students, we can say that the Constituent Assembly works gives sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared